اٹھو میری دنیا کے مسلمانوں کو جگا دو، کاخ ایک مسلم کے در و دیوار ہلا دو، یہ خاموش مجازی تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان کیا اللہ، بات، ماشاء کیا اللہ بات، ان کا یہ لیا انہوں نے کہا ہے کہ ایک مسلم کے در و دیوار اور جو دیوار بھائی ہے ایک وہ منٹ مولانا سنو، بھائی جی نہ ادھر ادھر کی نہ بات کر کے بتا یہ قافلہ لٹا ہے کیوں، ہمیں رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے۔ ہائے 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 ہائے، چلے او سر ہو شیر مومن ہے عبید بھائی؟ جی جی بالکل بالکل۔ اچھا کوئی سورہ سنا دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ ماشاء اللہ اور کلمہ ماشاء بھی اللہ، بول نہیں بس بھائی میں بس ایک ہو گیا بھائی۔ عالم ہوں بھائی، میں عالم کی پڑھائی پڑھ رہا ہوں، میرے ابھی 2 سال اور باقی ارے ہیں۔ واہ، دل خوش کر دیا عبید بھائی، تھینک یو سو مچ، بہت اچھا لگا آپ آئے۔ فرسٹ ٹائم آئے چینل کو، بھائی پتا کیسے چلا عبید بھائی؟ بھائی میں بہت دنوں سے دیکھتا ہوں، اصل بات ہے میرا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا دیکھتے دیکھتے، جو آپ لگائے ہیں کہ ہندوستان سے لڑنے والے، ہندوستان سے مطلب کہ وہ جو آپ لگائے ہیں ٹاپک، مطلب کہ محبت کرنے والے کے ساتھ رہتے سر ہیں یا لڑنے والے کے ساتھ رہتے آپ تو پڑھائی کر رہے ہیں نا مدرسے میں، رائٹ؟ کتنے ہیں۔ جی سال جی ہو جی گئے بھائی آپ کو؟ میرے مدرسے میں پڑھتے ہوئے لگ بھگ 9-10 سال ہو گئے ہیں ابھی، ماشاء اللہ اس لیے میں ماشاء ابھی اللہ۔ اپنی فارسی اول فارسی 2 میں دادیا۔ آپ اپنی جو سروسز ہیں وہ کہاں پہ سر انجام دے رہے ہیں؟ میں ابھی مفتاح العلوم میں پڑھ رہا ہوں جو ارے مئو میں نام ہے۔ سام مت بتائیے بھائی، پورا آپ میں ایگزیکٹلی مت بتائیے۔ ہاں میں نے یہ پوچھا تھا کہ سروسز کہاں کر رہے ہیں، آپ وہاں پہ اپنی خدمات بھی سر انجام دے رہے ہیں یا صرف ابھی تک پڑھائی کر رہے ہیں؟ نہیں ابھی پڑھائی کر رہا ہوں، ابھی 2 سال اور باقی ہے ہماری۔ ابھی 2 سال اور باقی ہیں، ٹھیک ہے، تو یعنی جی تقریباً آپ نے کافی کام کر لیا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ یہاں جی سے جی کیا مفتی بن کے نکلنا چاہیں گے؟ نہیں عالم بن کر کے۔ عالم بن کے نکلنا چاہیں گے، چلیں ماشاء اللہ سر، میں آج کافی دیر سے کسی عالم دین کا آوازیں مانگ رہا تھا، چلیں عالم دین اللہ پورے نے تو آپ نہیں کی ملے، سن تھوڑے لیا سے، جب۔ ہاں شکر الحمدللہ، تھوڑے سے چھوٹے لیول کے عالم مل گئے ہیں، ابھی کمپلیٹ عالم نہیں ہوئے لیکن کسی حد تک عالم ہو گئے ہیں۔ حضرت آپ نے اتنا اسلام کو پڑھا ہے اور آپ نے پڑھا بھی انڈیا میں بیٹھ کے ہے، تو یہ تو اور بھی اچھی بات ہے کہ ایک ایسا شخص جو کہ ایک نان مسلم کنٹری کے اندر بیٹھ کے عالم کا کورس کر رہا ہے، یہ اور بھی اچھا بات ہے، اس کے بعد اس قسم کی حجتیں زیادہ ہوں گی۔ سر ہمارے قرآن، حدیث، شرع تینوں کے مطابق کیا ایک مسلمان پیگنس کی آرمی میں رہتا ہے، یعنی مشرکین کی آرمی میں رہتا ہوا ایک مسلمان آرمی کے ساتھ جہاد میں حصہ لے سکتا ہے؟ لڑائی میں، سوری جہاد کا لفظ میں یوز کرتا، لڑائی میں حصہ لے سکتا ہے؟ بالکل بالکل، میں مثلا میرا 90% ڈاٹا یوز ہو چکا ہے اور 1 بلکہ کوئی بات نہیں سر، 1:02 میرے میرا سے ڈاٹا بات رینیو میں نا ہوگا۔ اکثر لوگوں کے ارے ڈاٹا ختم ہو جاتے ہیں۔ عبید بھائی سنو ایڈم ایک میں منٹ۔ مختصر صرف 2 منٹ لے رہا ہوں، اس کے بعد آپ کو اچھا جو بولنا ہے عبید بول بھائی لیجیے گا۔ میری بات سنو، عبید بھائی جی جی یہ دیکھیے جی جی اسکرین پہ، سنو میری بات سنو، اسکرین پہ یہ میرا جی واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، آپ میرے کو جی ہائی بھیجو، میں آپ کا ڈیٹا پیک جو ہے وہ ابھی یہ کرتا ہوں، واہ ریچارج کرتا کیا ہوں بات انشاءاللہ۔ ہے، واہ ہمارا واہ بھائی واہ، زندہ ہے، یہ اسکرین جلدی رکو میں پھر سے شیئر کر دیتا ہوں۔ واٹس ایپ نمبر پہ سینڈ کریں، آپ کو ڈیٹا ملے ذرا فٹافٹ۔ اور آپ کا جو تب تو یہ ہے سیکیورٹی ہے، آپ کی جو آئیڈینٹی ہے بالکل سیف رہے گی، بالکل فکر نہیں کرنا، آپ بالکل میرے اوپر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ آپ یہ اس پہ نمبر پہ مجھے واٹس ایپ کرو، میں ابھی آپ کو ڈیٹا پیک ریفل کرتا ہوں، ریچارج کرتا ہوں۔ واہ کیونکہ سر ساحل صاحب بات ایسی ہے کہ وہ لمبی ہوئے گی تو ڈیٹا ختم ہو گیا تو گیم خراب ہو جائے گی، ہاں تو لہٰذا آپ میرے پہلے کو ڈیٹا ہائی فل کر بھیجو۔ لیں۔ ہاں آپ پہلے ڈیٹا فل کر لیں، پھر آپ سے کمپلیٹ ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ بالکل اور یہ ہدیہ سمجھیے گا میری طرف سے، مطلب ایسا کوئی ہم غلط نیت سے نہیں بول رہا ہوں میں۔ ساحل عبید صاحب بھائی کیا نکل لیے کیا؟ جگر مراد آبادی نے ایک کدھر شاید گئے وہ بھائی؟ متعلق کچھ کہا تھا، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ بھائی وہ تو نکل لیے، نہیں ہو سکتا ڈیٹا چلے گیا نہیں، اچھے لگ رہے تھے وہ بھائی ہمارے، ہاں لیکن وہ گئے کدھر؟ شاید ڈیٹا میسج کرنے کے چکر میں ڈراپ ہو گئے ہوں گے۔ ساحل بھائی اپنا میسج دیکھیں یار، اگر ان کا جیسے ہی میسج آتا ہے نا، آیا سر ان آیا کو ڈیوائس ناٹ آیا کنیکٹ، آ گیا ہاں سر ڈیٹا دیں، سر ان کو ڈیٹا دیں بھائی کو۔ ہاں میرے کو ہائی بھیج دیں گے، میں اب بھی ڈیٹا کر دوں گا، 10 GB اب بھی کر دوں گا۔ ارے 10 کی بجائے یار 20 دے دے یار، کوئی مسئلہ نہیں 20 ہے، کر دوں کل گا، کو کوئی اپنے مسئلہ لیے نہیں، بھی یوز کر لیں کل۔ 30 GB کر دوں گا۔ کرنے کے بعد بیک ہو جا رہا ہے نا، اصل بات تو یہی ہے، دقت ہے نا۔ ہاں تو کوئی مشکل نہیں، عبید بھائی آپ میرے کو واٹس ایپ پہ ہائی بھیجو بیک جا کے، میں ابھی ڈیٹا آپ کا ریفل کرتا ہوں، کوئی مشکل نہیں۔ اور پھر سے جوائن کر لینا کیونکہ جگہ ہم خالی رکھ رہے ہیں آپ کے لیے۔ بیک جا کے آپ واٹس ایپ پہ میرے کو ہائی بھیجو، دیکھو نمبر سامنے، یہ آپ کا نمبر ہے کیا؟ یہ ابھی آپ نے ہائی بھیجا کیا؟ لاسٹ کا ڈیجٹ نہیں بتانا نہیں چاہیے۔ لاسٹ کا ہے
मत बताओ, वो भी मत बताओ, मत सिर्फ बताओ अभी इसको, हम साहिल आप उसे टेक्स्ट भेज दो, तू बैदुर है तो हाँ मुझसे ठीक मुझसे है, मेरे मुझसे को भी टेक्स्ट भेज व्हाट्सएप करो आप। व्हाट्सएप दोबारा करो 1 यार मिनट, कि मैं आपकी स्ट्रीम में हूँ, ये व्हाट्सएप करो। यही नंबर है ना जिसके आखिर में 26 है? हाँ जी जी 26 वाला। जी जी, ओके, अभी कर। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या यार कितनी जल्दी हमारी दुआ कबूल हो जाती है साहिल भाई। अच्छी बात साहिल है। भाई गौर करना, कहीं 8-10 बंदे अभी लिखकर भेजने लगेंगे, हाँ मैं उबैदुर हूँ भाई, अरे करो मेरे जल्दी। को हाई अभी एक का आया तो मेरे को वही लगा कि उबैदुल भाई का तो नहीं है। नहीं 86 अपने 55। व्यूअर थोड़े समझ। 30 GB में 30 GB कर दिया सर आपने, 30 कर दिया 20 की बजाय। 30 GB कर दिया हूँ। उबैद वाह भाई ज्वाइन करो फिर से, एक जगह खाली रखना अमित। उबैद भाई को बोलते हैं, उबैद भाई आ गए। नहीं अभी उनका कैमरा माइक नहीं जुड़ा है हाँ म्यूट पे रखिए भाई। आप, आपके उबैद इतने भाई बड़े बोलिए। स्कॉलर आए हैं तो हम जरा उनसे बातचीत कर लेंगे यार। सुपर चैट हटा दें फिलहाल, ताकि जरा हम इनसे गपशप शुरू करें और फिर सुपर चैट्स पढ़ेंगे। इसके बाद सुपर चैट पढ़ लीजिएगा, काफी सुपर चैट्स हो गई हैं, पहले हम इनके साथ फाइनल गपशप लगा लें। जी भैया जी, डेटा आ गया अब आपके पास, जी कोई टेंशन तो जी नहीं जी, है अब? सवाल नहीं नहीं रिपीट नहीं करूं? जी, ओके सवाल मैं रिपीट करता हूँ मेरे प्यारे भाई। आखिर 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 1 मिनट 1 मिनट, मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, उसके बाद आप सवाल कर लीजिएगा, ठीक है? जी सर शेयर कर लें। उठो मेरी दुनिया के मुसलमानों को जगा दो, काश एक मुस्लिम के दरो दीवार हिला दो, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। सुभान हाय अल्लाह हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान, क्या बात, माशाल्लाह क्या बात, माशाल्लाह। अच्छा इनका दिल ये लाला जीत लिया। इनका ये शेर मैं जो है सवाल, सर, एक सेकंड, इनका ये जो शेर है तमाम हमारे साथी जिन जिनके चैनल्स हैं, ये सारे के सारे लोग इनका ये शेर स्पेसिफिकली कट करके शॉर्ट बना के स्ट्रीम में फैला दें। मेरी तमाम स्कॉलर से दरखास्त है, तमाम इस्लामिक स्कॉलर से दरखास्त है कि इस शेर के ऊपर अमल करते हुए आएं और ये एक्स मुस्लिम की दीवार हटा दें प्लीज। आई एक बार बेग देम, रिपीट, रिपीट उबैद करें जी, भाई एक बार रिपीट फिर करें से उबैद बोलो। भाई ये शेर। उठो मेरे दुनिया के मुसलमानों को जगा दो, वाह काश एक मुस्लिम के दरो दीवार हिला दो, यस ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस यस दौर में जीना है तो कुकराम मचा दो, इस दौर में वल्लाही जीना है तो कुकराम मचा वल दो। बढ़िया था मेलोड। तो जनाब तमाम लोग जो हमारे चैनल्स की कटिंग करते हैं उन सब से मेरी एक्सप्लिसिट गुजारिश है कि ये शेर इनका हमारे हाफ आलिम का शेर फैला हक है उबैद भाई को, हक है, हक है, हक है। फैला दें फैला दें। अच्छा एक सवाल लाला जी मैं इनसे पूछ लूं थोड़ा सा। सर पूछ लें, बस टॉपिक डाइवर्ट ना होने दीजिएगा प्लीज। हाँ बस मैं ये पूछना चाहता था कि ये आलिम दीन है, तो इनसे बस पूछना चाहता, दीवार मुजक्कर है कि मुअन्नस है? कहा था ना गेम ना खराब करी ये तू बहुत जो है नहीं समझता है नहीं, साहिल। इन्होंने जो शेर कहा है, ये नहीं हमेशा नहीं गेम खराब करता है। नहीं नहीं, इन्होंने जो शेर कहा है ना, तो उन्होंने कहा है कि एक मुस्लिम के दरो दीवार, और जो दीवार भाई है भाई वो एक मुअन्नस मिनट के सुनो, भाई भाई, जी। न इधर उधर की न बात करके बता ये काफिला लुटा है क्यों, हमें रहजनों से गिला नहीं तेरी रहबरी का सवाल है। हाय 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 हाय, चले ओ सर, हो, शेर और शायरी को साइड में रखते हैं हम अब, क्योंकि शेर और शायरी लेफ्ट राइट जा रही है। सर बहुत से मुद्दे पे जबरदस्त। आते हैं। हाँ मुद्दे पे आते हैं। आपका पहला शेर बिल्कुल हमारी रिक्वेस्ट, हम भी यही रिक्वेस्ट करते हैं तमाम आपके स्कॉलर से कि आए और एक्स मुस्लिम की इस दरो दीवार को गिरा दें। आई लव देम, आपने जो बोला मैं आपके साथ हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपके स्कॉलर्स आएं और इस दरो दीवार को गिराएं। तो एनीहाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैंने जो आपसे सवाल किया था, जब आपने कहा था आपका डेटा खत्म हो रहा है, जी अब आपका डेटा आ जी चुका है। लेट मी आस्क यू द क्वेश्चन अगेन। इस्लामिक शरह, फिका, जी हदीस, तफसीर और कुरान की रूह जी से क्या एक मुसलमान शख्स एक मुशरिकीन की आर्मी के साथ किसी मुसलमान की आर्मी के ऊपर अटैक में शामिल हो सकता है? जी, फिर दोबारा बताइएगा थोड़ा सा। क्या एक मुसलमान शख्स जी मुशरिकीन की आर्मी के साथ मिलकर जी जी किसी मुसलमान आर्मी के ऊपर अटैक कर सकता है? जी, बिल्कुल, बिल्कुल कर सकता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है। चलिए सर, अब आप मुझे कुरान और हदीस, तफसीर, फिका, शरिया की रूह से इसका जी रेफरेंस दें सर। जी जी, दे देता हूँ। जी जनाब। ये जौहर कानपुरी का शेर है ये, उसमें ये आपकी नहीं पूरी शेर नहीं, वजाहत मिल शेर नहीं, जाएगी। नहीं सर शेर नहीं चाहिए नहीं, सर। एक बार ये शेर सर सुन लीजिए, अगर इसमें नहीं वजाहत भाई नहीं मिली तो भाई, अब मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। जो सीरियस बात मैं होती भी है मैं उसका सीरियस आंसर इस चाहिए होता है। इसमें आपका सर सवाल का अगर देखिए, जवाब नहीं मिलेगा डेटा तो फिर सर आपको हमने शेर डेटा हमने आपको डेटा शेर सुनाने के लिए दिया, एक शेर हमने आपको एक्सेप्ट किया। एक अब आपने रेफरेंस देना है। मैंने आपको कहा था कुरान, जो मेरा क्वेश्चन जो था जो वो जो था कुरान, हदीस, शरा, फिका और तफसीर के मुताबिक। सर आप इससे बाहर नहीं जाएंगे। आई डोंट नीड शेर, हाँ आई हाँ डोंट हाँ, नीड कि आपका स्कॉलर क्या कहता है। जो बात हुई है सर उसके ऊपर अमल करें। शेर नहीं सर, शेर खत्म हो चुके हैं। बस एक ही आखिरी शेर सुन लीजिए, नहीं इसके सर बाद से मैं शेर कोई खत्म हो शेर नहीं चुके हैं सर। सुनूंगा। सर नहीं, डेटा ये लेके शेर जो सर है, डेटा लेने के बाद खबासत नहीं करें।
ڈیٹا آپ نے لے لیا ہے, سر اب آپ سر ہمیں سر میں ریفرنس آپ سے مؤدبانہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں نہیں سر سر کہ جو ریکویسٹ میں ختم ہو شعر چکی ہے, پڑھوں گا اب آپ ہمیں نہیں, اب آپ ہمیں ریفرنس دیں گے, ورنہ میں اس سے آپ جو پہلے ہیں میں اس سے پہلے سر کبھی اب ریکویسٹ شیئر کیا بھائی نہیں آپ سے, چاہیے سر, میں اس سے سر اب پہلے شیئر نہیں چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ساحل ریکویسٹ ان سے قبول بات نہیں کر کیا لیں جائے گا یار, بھائی. یہ میں دیکھیں آپ بھاگ رہے ہیں. अच्छा نہیں بھاگ उबैदुल नहीं रहा हूँ, भाई, बस सिर्फ एक शेर सुनिए, एक शेर सुनिए, बस उसके बाद हवाले से आप के 2 सवाल के जवाब मैं दूंगा. अच्छा उबैद भाई मेरी बात सुनो ना, हवाला देके फिर बस आप 4 लाइन. उसके बाद में शेर रख देना. देखिए है कि मिलेगी मंजिल मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं, वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं. अच्छा इसका हवाला ये दे देना जौहर प्लीज कानपुरी भाई. का यार देखिए ये बात जौहर सुने, ये देखिए जौहर बात सुने, कानपुरी के शेर है. देखिए बात सुने, अच्छा अभी बात हवाला सुने. दे दे भाई. अब जी आप जो हैं जो मैंने सवाल किया था उसका जवाब दे दें प्लीज, उसका रेफरेंस दे दें, जी जी. दे दें प्लीज रेफरेंस. कुरान और हदीस कहता है कि अपने मुल्क के लिए अगर जान भी लुटाने दिखा की दें, बात कुरान पड़ की जाए आयत तो दे दें, जान भी कुरान लुटा की दे. आयत, कुरान की आयत दे दें सर. इस चीज की कुरान की आयत दे दें, आपने हिफ्स किया होगा, आपने सारी तफसीरें पढ़ी होंगी, आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, दे दीजिए सर. हाफिज नहीं भाई, हाफिज नहीं कोई हूँ. बात नहीं, ठीक है, आपने आलिम का कोर्स किया, आपने कहा है कि कुरान कहता है अपने देश की खातिर अपनी जान दे दो. सर ये कुरान की आयत दे दें. जी जी सर, मैं वेट कर रहा हूँ सर, कोई मसला नहीं. अगर आपने सर्च करना है सर्च करके आ जाए, मैं वेट कर रहा हूँ. एक मिनट मैं कर ही लेता हूँ सर्च. जी सर सर्च कर लीजिए सर. इसे भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि नहीं पहले कुरान सहाबा की है, किराम पहले एक सेकंड, पहले कुरान की है सर. देखें दो चीजें, जब आपने कहा ना ठीक है कुरान कहता मैं है, अभी तो वो आपने मैंने अभी हदीस नहीं लेना, या तो आप कहते हैं कुरान नहीं कहता फिर हदीस पे चले, मैं आपके साथ हदीस पे भी बात कर लूंगा. मैंने तो आपको पांचों चीजों का रेफरेंस दिया था ना. आपने कहा था जी कि जी कुरान कहता है, तो या तो पहले कुरान की आयत दे दें, फिर हम कुरान को देख लेंगे, फिर हम आगे से चले चलेंगे हदीस पे भी, या आप कहते हैं कुरान नहीं कहता. नहीं रुक जाइए जी जी मैं रुक गया सर. तब तक आप किसी और से गुफ्तगू कीजिए. नहीं सर, हम आप सर इस वक्त सारा टाइम आपका सर, आपको आपको हमने डेटा पहुंचाया है, हम किसी और से थोड़ी बात करेंगे अभी. ठीक है सर इतने हमने सुपर चैट के अंदर से निकाल के पैसा आपको डेटा पहुंचा दिया, क्यों साहिल भाई? बिल्कुल. तो हम किसी और से ऐसे बात कर टाइम तो नहीं जाया करेंगे. स्कॉलर भाई आए हैं हमारे साथ, हुब्बुल वतनी सिखा रहे हैं हमें, तो हम स्कॉलर से बात करेंगे कि 2 नंबर बंदे से बात करेंगे भाई? और भाई हमारे चाहते हैं तो वो जो मदरसे के जो ये है उस्ताद है, हाँ हाँ उनको भी साथ में ले लेते हाँ हैं, हाँ इसमें हाँ मैं हाँ उनका हाँ भी हाँ, डेटा मैं कर दूंगा. सोने पे बेशक सुहागा. बेशक बेशक. आप नहीं भाई ऐसा करें नहीं सर, ऐसी अपने बात नहीं, डेटा 2-3 की कमी नहीं है. सर अपने 2-3 स्कॉलर्स को भी ले आइए, हम आप चारों के साथ इकट्ठी बात करना पसंद करेंगे. नहीं हमारे उस्ताद मुफ्ती यासिन नदीम अलवादी साहब काफी हैं अच्छा काफी आपके है, लिए. मुफ्ती यासिन जी नदीम जी अलवादी बिल्कुल. काफी है. ओके सर, उनकी जी उनकी जी आवाज सुनिए सर, उनकी आवाज सुनाऊं आपको? मुफ्ती सुनाइए. यासिन मैं नदीम तो अलवादी, अरे सर अरे सर उनके अरे तो आवाज सुनने के लिए मैं हमें हमतन अरे बेताब रहता हूँ. अरे 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 मेरा प्यारा भाई, मैं आई लव यू, आई लव यू. ये सर सुनिए उनकी आवाज, ये उनकी आवाज सुनिए आई मेरी लव यू जान. टू. हुब्बुल वतनी देखें जरा, हुब्बुल वतनी देखें, देखिए. I will not shed blood because of land, because of any piece of land. No, it is not about land. See, you have shed so much of blood in the name of It religion. was not. What else was it for? और किस चीज के लिए सर? उस वो जो ब्लड शेड हुआ है, वो हुआ है आपको पहुंचाने के लिए. हाय 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 हक को माने, हक माने. ट्रुथ अल्लाह एक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, इस्लाम आखिरी पैगाम है, क़यामत बरहक है, इसको पहुंचाने के लिए. हक 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 हक. किधर गया भाई? हक हक करते चला गया भाई. 30 जीबी अरे बर्बाद बाप मेरे. रे बाप. तेरे मैं में नेट पर वही सर्च कर रहा था साहिल साहिल भाई 30 कि जीबी डेटा वापस कितने का पैसा आता कैसे है? खींचते हैं. साहिल 30 जीबी डेटा कितने का आता है? ज्यादा नहीं 200 का, मतलब 200 का, 181 टू बी प्रिसाइज. 200 गए, 181 रुपीस गए भाई. जाया हो गए. मैं नेट पर वही सर्च कर रहा था कि पैसा वापस कैसे खींचते हैं. वापस रिटर्न कैसे खींचना है. हाँ. क्या वो तो यार, की हूँ. तगड़ा घोड़ा समझ के मैंने रिचार्ज किया भाई. शेरो यार शायरी करने लगे. घोड़े को आपने पहले आजमाया नहीं था थोड़ा, के पहले डेटा दे दिया. लाला जी नेक्स्ट टाइम इसकी इल्मी लियाकत जो थी, जब इसने कह दिया था एक से मुस्लिम के दरो दीवार हिला दो, तो जो के नहीं कहना चाहिए था, वहाँ की कहना चाहिए था. दरो यार दीवार मोन्नस होता है, यार वो तो ठीक है, असल में मुज़क्कर शेर इसने था ना, बांधा. वो तो शेर था ना, शेर और शायरी में आप कुछ भी डाल देते हैं, वो कोई मसला नहीं है. शेर पढ़ रहा था ना. लेकिन बात ये है, नेक्स्ट टाइम साहिल पहले 5 जीबी देना, ताकि आधा घंटा बात हो हाँ, जाए. पहले अगर 2 आधे जीबी घंटे दूंगा में, तुझे. हाँ आधे घंटे में गेम सेट हुई, तो फिर बाकी का 25 जीबी भेजना. ओके. ओह मैन. डेटा लेके भाग गया.
डेटा जिहाद आ गया। आ गया भाई मेरा। आ गया भाई, मैं आ गया, ऐसा आ गया। खोटे सिक्कों पे दाव नहीं लगाता भाई मैं। मैं भागने अरे वालों अरे में से नहीं, इसलिए कि मैं अरे अरे पहले शेर माशा जो कह दिया था भाई। अरे 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 चले और चले एक सर, मोमिन आपने कुरान जो की है आयत वादा सुनी? खिलाफी नहीं करता है। आपने सर वो मैंने दिखाया अभी लास्ट सैटरडे को, मेरे चैनल पे जाके देखिएगा, एडम सीकर उर्दू पे, कि वादा खिलाफी जी क्या होती है। अच्छा अभी मुझे ये बताइएगा, एडम सीकर उर्दू पे जाके हाँ जरूर जी देखिएगा ताकि आपको पता लगे, और मेरे साथ अगले सैटरडे को आके बात कीजिएगा वादा खिलाफी के ऊपर। अभी मुझे ये बात कीजिएगा सर कि वो आपने कुरान की आयत देनी थी, जी सुन लिया बिल्कुल आपने? बिल्कुल मिल चुका। कुरान जी की जी कौन सी वाली सर? कुरान की कौन सी सूरा, कौन सी आयत? एक मिनट हाँ। हम्म, सूरा है 35 कौन 35 सी 14 कौन सी कौन सी है? कौन सी 35? हाँ आयत नंबर 35 है। हाँ आयत नंबर आयत नंबर 35 है, 35 है। और सूरा सूरा नंबर? इब्राहिम आयत नंबर 35। सूरा इब्राहिम में आयत नंबर, जो आपके पास स्कॉलर बैठे हैं जो आपसे आपको बता रहे हैं, उन्हीं ने? वो सब मेरे साथी हैं। असल बात हम लोग अभी रूम ही में है ना, अब रात के समय है तो सोने का वक्त हो गया था। तो अच्छा अच्छा अच्छा, आप सूरा देख इब्राहिम की लीजिए। आयत जी नंबर जी 35 है। ओके ओके, मैं जनाब जी भूल गया। वही क़ाल इब्राहिम रब्बी जअल हाज़ल बलद आमिना जी व जी जा जी 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 मेरी जान, जी मेरी वो जान, मेरा प्यारे भाई, ये स्क्रीन पे यार, स्क्रीन पे तो आने देना यार, स्क्रीन पे तो आने दे। हम्म, जी मेरे भाई, जी जरा इसको पढ़िएगा सर। जी और इसका तर्जमा है जी जी, और आप मेरे याद सामने उर्दू कीजिए पढ़ना जब चाहते हैं? इब्राहिम अलैहि। उर्दू पढ़ना चाहते हैं या कौन जी सा जी पढ़ना चाहते हैं? उर्दू में पढ़ उसका तर्जमा पढ़ रहा हूँ, आप मिला लीजिएगा। कौन सा क्या कर लीजिएगा? आप मतलब कि उसको देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ उर्दू, ठीक है। और याद कीजिए जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, अय मेरे रब, इस शहर मक्का को जाइए, अमन बना दे, और मुझे और मेरे बच्चों को इस बात से बचा ले कि हम बुतों की परस्तिश करें, और अपनी औलाद को मक्का मुकर्रमा में छोड़ने का मकसद भी अपने महबूब शहर की आबादकारी था। उन्होंने बारगाह इलाही में अर्ज किया। हम्म, ये ना हो सके तो क्रोम पर ये सर्च कर लीजिए, आपका सबसे पहला वेबसाइट ही आएगा, उसी पर मैंने ये सर ये आपके लिया। सामने है, जी आपके सामने है। जी जी सर, इससे क्या साबित होता है सर? और याद करो जब कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, मेरे रब, इस शहर मक्का को बना दे अमन की जगह, जी और सर, बचा रख इससे मुझे और मेरे औलाद को इससे कि सर हम मैंने बुतों की पूछा है, परस्तिश। इससे साबित क्या होता है सर, ये आपने बताना है। जी जी इससे साबित यही होता है। जी हेलो जी 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 जी। इससे साबित, इससे अपने शहर को आबाद करने का, हम्म, और आबाद करने के लिए जाहिर सी बात है कि अगर कोई दुश्मन आप पर हमला करे, आपके अजीज़ व अकारीब, जी चाहे आपके साथी जी जी हिंदू जी मुस्लिम कोई भी हो, भाई सब हमारे भाई हैं, तो जाहिर सी बात है अगर कोई भी आप पर हमला करे तो आप उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। इस आयत से आपको साफ सर, साफ जाहिर मिलता है। जी, तो जी ये कब हुआ था? जी ये आप कब कह हुआ रहे थे था? कुरान और हदीस से दलील, तो इससे जी जी अपने जी जी अपने जी जी शहर से मोहब्बत करने की जी दलील जी मिल जी रही जी है कि जी नहीं मिल जी रही? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मैंने आपसे सवाल किया है कि ये जो जी शहर जिसको उसने कहा जी है कि अमन की जगह बना दे, दारुल जी अमन बना दे, इस शहर को जी दारुल अमन बना दे, जो उसने कहा जी है, ये दारुल अमन कैसे बनेगा? मुझे जरा ये बताएंगे आप? दारुल अमन बनेगा, ये इसमें जो लिखा है कि अमन व सलामती रहेगी, तब कैसे बनेगा? अमन व सलामती, अखुवत व भाईचारगी, पड़ोसी से मोहब्बत। अच्छा ऐसे बनेगा? यार भाई का इंटरनेट क्यों गया? यार भाई लोगों का इंटरनेट क्यों चला जाता है यार? क्या यार, ये क्या मुसीबत है? हाय हाय, ये भाई लोगों का इंटरनेट क्यों चला जाता है? हेलो जी भाई। इंटरनेट नहीं गया था, असल बात है वो जी इसमें जी डबल स्क्रीन करके पढ़ रहे हैं ना, तो जिसकी वजह से वो कभी कभी हट जा रहा है जैसे। जी जी जी, मैं ये जो बोल रहा हूँ कि ये शहर को जी अमन का बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? शहर को अमन बनाने के लिए, क्या करना पड़ेगा इस्लाम की रूह से, कुरान की रूह से? हाँ भाई जाहिर सी बात है कि कुरान के रूल से, अगर इस्लाम के रूल से माना जाए तो वहाँ से बुत परस्ती को खत्म किया जाए, क्योंकि मक्का में तो ऐसा नहीं था। थैंक यू सो वेरी मच। अगली आयत पढ़ते हैं, कोई मसला नहीं, दोनों 35 आपने दिखाई, 36 मैं पढ़ देता हूँ। ऐ मेरे जी परवरदिगार, इन बुतों ने बहुत से लोगों को गुमराह किया है, तो जो मेरी पैरवी करे तो बिलाशुबा मुझसे है, जो मेरी नाफरमानी करे बिलाशुबा बड़ा मेहरबान है। सर मुझे बताइए कि इब्राहिम ने उस शहर को अपना करने के लिए सबसे पहला कदम क्या किया था? कितने बुत तोड़े थे और कुल्हाड़ा किसके पास रखा था? बताएंगे सर? जी जी पढ़े हैं बताइए। ये, इसलिए कि वो कुल्हाड़ा तोड़ दिया, कहा कि अना सकीम, मैं बीमार हूँ, और लोग गए तो उन्होंने बुत को तोड़ दिया, और जो है कुल्हाड़ी उस बड़े वाले बुत के ऊपर रख दिया। जब बेहतरीन। उससे पूछा, तो मेरा सवाल ये था, जी मेरे भाई, जी 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 जब पूछिए। सवाल दोबारा से अब रिपीट करता हूँ, एक जी मुसलमान क्या जी मुशरिकों के साथ, मुशरिक वो उसे कहते हैं जो बुत परस्त है, जी जो बुत परस्त है, इस्लाम आपको दारुल अमन और दारुल हरब, दारुल इस्लाम और दारुल हरब, ये दो चीजें जी सिखाता है, वतन परस्ती नहीं सिखाता। अभी आपने जो आयत दी, इस आयत के साथ सिर्फ नेक्स्ट आयत को साथ में मिला लो, तो ये जी बताती है कि जब तक आप उस शहर से मुशरिकीन का खात्मा नहीं कर देते, मुशरिकीन को खत्म नहीं कर सकते, चाहे उनको कत्ल करके करें या चाहे उनको दीन इस्लाम में लाके करें, दोनों में से किसी भी तरीके से कर लें, तब तक आप उस शहर का दिफा नहीं कर सकते, जब तक आप उसको दारुल इस्लाम नहीं बनाते। तो वंस अगेन आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। दोबारा से सवाल करता हूँ, ठीक है फिर ठीक है ठीक सोचिएगा। है, 1 मिनट 1 मिनट 1 एक मिनट। सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, पॉज करें, हाँ पॉज करें। बोलिए दोबारा से बोलिए सवाल बोलिए। सुने।
उसके बाद म्यूट जी करके अपने साथी से पूछना और साथी से नहीं हेल्प नहीं लेके साथी से फिर नहीं मुझे कुछ गाइड देना। इसका तो जवाब सरासर मुझे आ रहा है, तो पूछने की आपने उसमें जरूरत ही नहीं आपने मुझे दिखाना है कि एक मुसलमान गैर मुसलमान काफिर जो मुशरिक हैं, बुत परस्त हैं, जी उनके साथ मिलकर जी किस तरीके से अपने मुसलमान आर्मी के साथ अटैक कर सकता है, को अटैक कर सकता है। देखिए अगर ऐसा रहता तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हिंदुओं की खत्म करने की बात होती, मुशरिकों की खत्म करने की बात होती, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले अपने दादा को मारते, इसलिए कि दादा जो थे वो काफिर थे, बस ठीक है खत्म हो नहीं थे? गया। आप ये ओके, बताइए। दादा जो आपके मोहम्मद के दादा थे, उस वक्त मोहम्मद बताते खुद एक मुशरिक थे, जो मैंने बहुत जी दफा दिखाया। जब जी मोहम्मद के दादा की बात आप करते हैं तो दादा बताते खुद एक मुशरिक थे, और मोहम्मद साहब के जो दादा थे उन्होंने मोहम्मद साहब के वालिद को एक बहुत बड़े बुत के सामने भी कुर्बान करने की कोशिश की। उस वक्त मोहम्मद साहब खुद एक मुशरिक थे। मोहम्मद साहब के वालिद साहब भी जहन्नम में सड़ रहे हैं, सही बुखारी सही मुस्लिम के मुताबिक, और मोहम्मद साहब की वालदा भी जहन्नम में सड़ रही हैं। तो लिहाजा ये दोनों तो जहन्नमी लोग हैं, और मोहम्मद उस वक्त खुद बुत परस्त थे। सिर्फ आपने यही एक तो रिवायत पढ़ी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू और मतलब कि वालिद और वालिदा जहन्नम में सड़ रहे हैं, और दूसरी रिवायत नहीं देखी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि वो ईमान की हालत में थे। फिर एक और दूसरी रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए उनके कब्र के पास, फिर वो ईमान ईमान लाए, फिर ओके, उनको इस तरह से जो कई रिवायतें हैं भाई, आप लोग एक रिवायत को क्यों लेकर के ढोते रहते हैं भाई? सुने कुतुब सित्ता में जो आप रवायात दे रहे हैं वो जी कुतुब सित्ता में नहीं है, वो बात की कुछ रवायात हैं। नंबर 1, नंबर 2 वो हमारा आज का टॉपिक नहीं है, लिहाजा वहां पे जाए जी नहीं तो हाँ, बेहतर जाहिर सी होगा। बात है। अभी हम बात कर रहे हैं, अभी हम हम नहीं बात जा कर रहे हैं रहे हैं, भाई, आप ही जा रहे हैं। नहीं क्योंकि आप लेके आए दादा, मैं नहीं लेके आया। अभी हम बात कर रहे हैं कि हम कहाँ एक से लाए हैं भाई? मुसलमान, आप आप पूछे दादा वतन को से आप लाया मोहब्बत मैं की लाया दलील हूँ, मैंने दादा को आप लाया मैं लाया हूँ। आप सबसे पहले क्या कहे हैं कि मतलब वहां से काफिरों को खत्म करना है, तब वो अमन सलामती का वो होगा। तो मैंने जी, बताया कि अगर अमन सलामती पैदा करना क्या रहता। मोहम्मद ने मक्का में से, क्या मोहम्मद ने जी मक्का में से और मोहम्मद के अल्लाह ने मक्का में से हर मुशरिक को निकालने का हुक्म दिया कि नहीं दिया? और दूसरी बात ये भी देखिए कि कितने मुशरिकीन सर आए सवाल नबी किया पाक मैंने, सल्लल्लाहु सर अलैहि वसल्लम सवाल पर, और किया नबी मैंने, पाक सर सल्लल्लाहु सवाल किया मैंने एक पहले, मिनट क्या ये हुक्म दिया गया कि नहीं दिया गया? अब हमारी बात सुनिए, हुक्म तो दिया गया, लेकिन देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कितने मुशरिकीन आए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डायरेक्ट आया और मार दिया, आया मार दिया, ऐसे किया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? बिल्कुल नहीं किया। एक एक जहां तक कि एक देहाती आया बद्दू किस्म का, उसने मस्जिद में पेशाब सर कर दिया, देखें, लेकिन नबी हेलो पाक हेलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ हेलो नहीं कहा। इस तरह से हेलो अगर रवायतें देखो तो हजारों हेलो आपके सामने भाई मौजूद है, हेलो अगर हेलो समझे भाई तो सही। हेलो भाई, इट हैज नथिंग टू डू, इट हैज नथिंग टू डू, सॉरी मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, इसका कोई ताल्लुक नहीं है मुशरिक के नहीं साथ। इसका सुन ले पहले मेरी कैसे नहीं बात, ताल्लुक है भाई, सुन ले मेरी कैसे नहीं बात। ताल्लुक है? ओके, मुझे ये बताइए, बदर में जो लोग आ हजूर पे जिन्होंने हमला किया, और वो लोग मुशरिकीन मक्का के साथ मुसलमान बदर में मोहम्मद और उसके साथियों पे हमला करने आए। अब वंस अगेन ये सेम एग्जांपल, चूंकि आप मोहम्मद के ज़माने तक जा रहे हैं तो मैं सेम एग्जांपल मोहम्मद के ज़माने तक लेके जा रहा हूँ आपकी वजह से, वरना मैं वहाँ पे नहीं जा रहा था। आप चूंकि मोहम्मद को लेके आए हैं तो मैं मोहम्मद के ज़माने की एग्जांपल आपके सामने आप कोट कर रहा हूँ। मेरा आप सवाल सुनिएगा, बड़े बड़े अच्छे तरीके से सवाल सुनिएगा और फिर उसका जवाब रखिएगा। मोहम्मद के ज़माने में जो लोग बदर के टाइम के ऊपर मुसलमान कुरैश मक्का के साथ आए थे मुसलमान आर्मी पे अटैक करने, उनके बारे में हदीस के अंदर, तफसीर के अंदर और कुरान के अंदर क्या लिखा हुआ है? जी सर, मैं फिर वेट कर रहा हूँ सर आपका। दोबारा से बोलिएगा, दोबारा से। बदर के मौके के ऊपर जो लोग मुसलमान मक्का के मुशरिकीन के साथ बदर में आए थे मोहम्मद की आर्मी पे अटैक करने, उनके बारे में कुरान और हदीस में क्या लिखा हुआ है? जरा अपने भाई से पूछ लें, म्यूट करके फिर जवाब दीजिएगा। बल्कि ये बदर से फौरन पहले का वाकया है ना नहीं नहीं, एडम? बदर बदर अभी बदर वो वहां पे नहीं जाए। ओके बदर, ठीक अभी है। हम लड़ाई की बात कर रहे हैं, मुझे लड़ाई का पूछना है, मुझे पूछना है लड़ाई का। तो बदर के ऐसे लोगों के साथ क्या हुआ था भाई, जरा बताइएगा। भाई देखो भाई, गोल गोल घूमने और घुमाने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? जब गोल उसमें गोल क्या आके घुमा आए रहा हूँ, तो मैंने एक कुरान सेकंड, की आयत जो मैंने पढ़ी है। आप मोहम्मद तक गए हैं, मैंने आपसे एक ए- सिंपल सवाल किया, इसमें गोल घुमाने की बात क्या है? मेरा सवाल अभी तक भाई सिंपल है, गोल आप घुमा रहे हैं। जंगे बदर के मौके पे जो मुसलमान मुशरिकीन मक्का के साथ अटैक करने आए थे, वो जहन्नमी हैं या जन्नती हैं? क्योंकि वो तो शहीद हुए हैं, वो अपने देश को बचाने आ रहे हैं, वो अपने शहर मक्का को बचाने के लिए आ रहे हैं, मोहम्मद और उसके साथियों के गबन से, लूट मार से। सर वो जन्नती होंगे या जहन्नमी होंगे कुरान और हदीस के मुताबिक? प्लीज बता दें, फिर हम आगे चलते हैं। आप टाइम ले लें, टेक योर टाइम, अपने भाई से बात करें फिर जवाब रखें, कोई मसला नहीं है। देखिए जनाब के जब आप पर कोई हमला करेगा तो आप उसको मारिएगा कि नहीं मारिएगा, ये बताइए। बेहतरीन, आगे चलते हैं। ये देखिए आपके पास स्क्रीन पे आता है, मोहम्मद ने 4 अटैक्स किए भाई थे खाली तुम ही बुकराती मक्का। करोगे तो हमें भी बुकराती करने का मौका दोगे भाई? बुकराती क्या होती है? भाई वही होती है फेकम फेक रावी, जिसको बोलते ओके, हैं हम लोग। हम फेकम फेक आपने करनी है, फेकम फेक नहीं ना हम करते, हम कुरान हदीस तो तफसीर भाई के ऊपर सुनो ना चलते हैं, भाई, फेकम फेक भाई नहीं भाई करते। कहाँ से कहाँ बात लेकर चले गए? मैंने वो भाई कुरान की आयत पढ़ी मोहम्मद है तक भाई। आप गए थे, एक मिनट मोहम्मद तक आप गए भाई, थे, मैं अब मैंने आपको कितनी मोहम्मद दिखा बेसब्री के रहा हूँ। साथ आपकी बात ये सुनी, आप कुरान की सुनने के आयत लिए है, तैयार ही नहीं है भाई। कुरान की आप आयत सुनने चैप्टर के लिए नंबर तैयार ही 4 नहीं है। की, सर चैप्टर नंबर 4 की आयत नंबर 97 क्या कहती है, सर बता दें आप।
अरे वो सब छोड़ो ना, ये 4 की देखो कि जो 97 क्या कहती है सर? मैं पढ़ूंगा उसको आगे, 1 मिनट सुनो पढ़ें बात सर। भाई, कि जो मैंने वो कुरान की आयत पढ़ी थी ना, उसमें लिखा हुआ था कि वो अपने वतन से मोहब्बत करो तो अमन सलामती पैदा, तो आपने बताया कि अमन सलामती कैसे पैदा होगा, तो मैंने बताया कि मुशरिकों को मार के और फिर वहाँ पे मतलब कि भाईचारगी, मोहब्बत, उखुवत, ये सब जो भी है वो करना पड़ेगा। तो आपने फरमाया कि नहीं करना पड़ेगा, सबसे पहले मैंने तो ये नहीं मुशरिकों कहा। का एक खत्म सेकंड, करना एक पड़ेगा। सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, मैंने ये नहीं जी फरमाया। आप देखें, आप बिला वजह डिफरेंट टॉपिक पे जा रहे हैं। मेरा सवाल सिंपल है, अगर एक मुसलमान मुशरिकीन आर्मी में शामिल है और मुसलमान आर्मी पे हमला कर रहा है, क्या ये जायज है? दैट्स अ सिंपल क्वेश्चन। आप उसके लिए मुझे बिल्कुल रहना बिल्कुल जायज है, सहना बिल्कुल जायज बिल्कुल है। जायज है। ओके, अभी आप इब्राहिम तक गए थे और मोहम्मद से आप भागे हैं बदर की आर्मी से, चलें भाग जाएं आप, हम इब्राहिम ही दिखाते हैं आपको इब्राहिम क्या कहते हैं। तुम्हारे लिए बहुत अच्छा नमूना है इब्राहिम और उनके साथियों में के तर्ज अमल में। किस पे? इब्राहिम और उसके साथियों के तर्ज अमल में। जब उन्होंने अपनी कौम से बरमिला कहा, यानी कि एग्जैक्टली कह दिया, हेलो हम तो बरी हैं तुमसे और इनसे जिनको तुम पूजते हो अल्लाह के सिवा, हम तुमसे मुनकिर हुए और अब हमारे और तुम्हारे दरमियान अदुवत और बुग़्ज़ का सिलसिला शुरू है, नफरत का और हेट्रेड का सिलसिला शुरू हो चुका है हमेशा के लिए, यहां तक कि तुम ईमान ले आओ अल्लाह पर तौहीद के सिवाय। इब्राहिम के अपने बाप से भी ये कहने के लिए आपके जरूर इस्तिग़फ़ार करूंगा और आपके बारे में अल्लाह क्या कुछ भी इख्तियार नहीं रखता। परवरदिगार हम तुझको तवक्कल करते तेरी तरफ रुजू करते हैं। मुझे बताओ, एक मुसलमान, इब्राहिम पे तुम गए हो, मैं नहीं गया। इब्राहिम ने जब उस शहर को महफूज किया था, अब वो दारुल अमन को महफूज कर रहा है, मुशरिकों के साथ मिल के महफूज नहीं कर रहा। उसने तो अपने बाप को भी दफा दूर कर दिया। तुम मुझसे क्या बात कर रहे हो भाई? तुम्हारा ख्याल है मुझे कुरान नहीं पता, मुझे तुम्हारी तफसीरें नहीं पता, मुझे तुम्हारा अरे शरिया भाई नहीं पता? मैं एक्स मुस्लिम हूं, तुमने जितने साल पढ़ा उससे ज्यादा मैंने पढ़ा। मेरे साथ जलेबी मालूम है नहीं भाई, चलेगी, मैं मुझे तेरी रेफरेंस भी स्क्रीन दो, देखता हूँ भाई, मुझे मैं तेरी भी स्क्रीन रेफरेंस देखता दो, हूँ भाई। आप मुझे अपने बारे में रेफरेंस जानकारी दो। देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको बहुत पहले से देखता हूँ, गिव मी आज द से तकरीबन रेफरेंस 2 सर, सालों से मैं देख रहा हूँ आप लोगों को। देन गिव मी द रेफरेंस माय फ्रेंड कि भाई आप ऐसे दे रहे हो, एक अल्लामा मुशरिक कश्मीरी और आर्मी अल्लामा में, सयूती और अल्लामा महाली बन गए हो। आप ये सब मैं उनसे बड़ा हूं। हम आप ऐसा करें कि मुझे बताइए कि किस जगह पे लिखा हुआ है कि आप मुशरिक आर्मी में शामिल होके मुसलमान आर्मी के खिलाफ लड़ाई कर सकते हैं। प्लीज डोंट चेंज द टॉपिक। जब अगर कोई आएगा लड़ने के लिए, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो, भाई हम जिस देश में रहते हैं किधर लिखा हुआ है? हाँ? रेफरेंस पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि आपने तो अपने देश में भी खाना जंगी करनी है। कुरान चैप्टर नंबर 9 की आयत नंबर 123, ए अहले ईमान, जंग करो इन काफिरों से तुमसे करीब हैं। इसकी तफसीर में जाऊं, सारा चटाकटा खुल जाएगा अभी 2 मिनट में। तुम जिस कंट्री में रहते हो, तुम्हें कंट्री कंट्री याद आ रही है इस वक्त बहुत, तुम मेरे असल टॉपिक पे नहीं जा रहे, तुम्हें कंट्री कंट्री याद आ रही है, तो मेरी जान के टोटे, कंट्री के अंदर जहां पे तुम रहते हो, तुम्हें अपने करीब के दुश्मनों से, काफिरों से लड़ाई करनी है और वो तुम्हारे अंदर कुटिलता पाएं, सख्ती पाएं। ये तुम्हारा कुरान कहता है, चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 123। इसकी तफसीर में जाऊं, आपको इसमें तफसीर में लिखा होगा, पता है क्या लिखा होगा? लेट मी समराइज द तफसीर जो लिखती है। इसी वजह से आ हजूर ने सबसे पहले मक्का और मदीना को मुशरिकीन से पाक किया, वहां के बुतों को तोड़ा और वहां के सारे मंदिरों को गिरा दिया। उसके बाद आ हजूर मक्का मदीना की सरजमीन से बाहर निकले और शाम और इजिप्ट के करीब तक के इलाकों तक, दूर दूर तक आपने अपनी फौजें भिजवाई और जगह जगह दुनिया को इस्लाम से रोशनास किया और हक को फैलाया कत्लो कताल के जरिए। सर आप मुझे कैसे कह सकते हैं कि एक मुसलमान जिस नॉन मुस्लिम कंट्री में रहता है, वो उस नॉन मुस्लिम कंट्री का हो के रहता है? कुरान की रूह से आपने तो अपने इर्द गिर्द के नॉन मुस्लिम काफरों के साथ भी लड़ाई करनी है। अभी लड़ाई चल ही नहीं रही है, आपने लड़ाई करनी है। उनको वो चाहे कि वो तुम्हारे अंदर कुटिलता पाए, सख्ती पाए। हिंदी का वर्ड है कुटिलता, मुझे याद हो गया भाई, आयत मैंने इतनी दफा दिखाई है और आप अगर मुझे 2 साल से सुन रहे हैं तो आपको पता होगा ये आयत मैंने बहुत दफा दिखाई है। तफसीर भी दिखाऊं खोल के? जो मैंने बोला हरफ पर हरफ लिखा हुआ अगर हुआ तो फिर आप मानेंगे कि आपने अपने देश के अंदर भी क्या करना है, हर वक्त यैन करते रहना। कुरान कह रहा है, मैं तो नहीं कह रहा। इब्राहिम पे पहुंच जाते हैं आप सारे लोग, मोहम्मद से पहले वाली चीजों पे पहुंच जाते हैं सारे। मोहम्मद क्या कह रहा है उस पर नहीं आते, क्यों नहीं आते? जुमा में जो अटैक हुआ था 47 मार गया, साला तुम तो सत्य नहीं हो काफिर। यार उस भाई को ले आओ, आहिस्ता क्यों बोल रहा है उसको, आगे सीधी वो बात रख ले, आपको तो इल्म नहीं है, डाटा हमने दे दिया, उससे भी बात कर लेते हैं। उसे को ऊंची बात कर ले, दोनों मिलकर बात कर लो, माइक उसके भी पास कर दो। नहीं, इसमें क्या ऊंची बातें करनी है, नीची बातें करनी है? यार माइक देखिए उसके पास साफ कर साफ दो है कि ना। भाई देश से अपनी मोहब्बत कोई भी करेगा, जाहिर सी बात है। कहाँ जिस पे देश देश ने की हमें मोहब्बत? खिलाया पिलाया, सर वो आपका इस्लाम नहीं कह रहा, वो आपका माँ बाप की तालीम और तरबियत कह रही है, इस्लाम नहीं कह रहा। अच्छा दारुल उलूम देवबंद का फतवा जाकर निकाल लीजिए, देश के खिलाफ क्या कहता दारुल है। उलूम देवबंद मैंने कहा था अच्छा 1947 के दारुल उलूम बाद बिजनौर जिस टाउन का आप वक्त, निकाल लीजिए, जो कि कराची में है अभी।
اوکے جس وقت آپ کے پاس اس وقت انڈیا اور پاکستان بن رہا تھا یا بننے جی والا تھا اس ٹائم کے اندر اس قسم کے ڈنگر نما فتوے آئے, لیکن اس سے پہلے نہیں. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں شریعہ. اگر میں آپ کو شریعہ میں دکھاؤں کہ آپ انڈیا کے صرف اس حصے کی حفاظت کر سکتے ہیں جس حصے کے اندر آپ لوگ میجورٹی میں ہیں اور آپ لوگ وہاں پہ شریعہ اسلامیہ کے تھرو رہ سکتے ہیں, اگر آپ لوگوں کی حفاظت نون مسلم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کو ان کے ساتھ لڑائی میں رہنا ہے. وہ دارالحرب ہے, دارالاسلام نہیں. انڈیا جو ہے ہاف طور پہ دارالحرب مانا جاتا ہے, ہاف طور پہ دارالاسلام مانا جاتا ہے. امام کیا نام ہے ان کا یار, میرے ذہن سے کیوں نکل گیا, امام مالک, امام شافی جس ٹائم پہ یہ دارالحرب دارالاسلام شو کر رہے تھے, لکھ رہے تھے, اس وقت آپ لوگوں نے آلریڈی انڈیا پہ حملہ کر دیا ہوا تھا اور انڈیا کے کچھ علاقوں کے اندر اسلام نافذ ہو چکا ہوا تھا اور شرع اسلامیہ نافذ ہو چکی ہوئی تھی. اس ٹائم پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا انڈیا اس وقت جس وقت وہ لکھ رہے ہیں کیا انڈیا دارالحرب ہے یا دارالاسلام ہے, ہند اس وقت دارالحرب ہے یا دارالاسلام ہے. وہاں پہ اس ٹائم کے اوپر انڈیا کے کچھ حصوں کے اوپر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا اور اپنی حکومت نافذ کر دی ہوئی اور شرع نافذ کر دیا ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں وہ علاقے جو ہیں وہ دارالحرب نہیں ہیں, باقی علاقے جو ہیں وہ دارالحرب ہیں. دکھاؤں آپ کو, یہ بھائی چلے گئے کیا, اور بھائی پھر چلے گئے. اوئے ہوئے 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 3 GB ضائع ہو گیا. ساحل 3 GB ضائع ہو گیا. نہیں لیکن اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ قرآن اور حدیث سے بھائی کے پاس کوئی ریفرنس نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے ان کے اندر کی انسانیت بول رہی ہو یا ہو سکتا ہے دھوکہ دے رہے ہیں, لیکن قرآن اور حدیث سے ان کے پاس کوئی حوالہ نہیں ہے, اتنا تو ثابت ہو گیا. ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی. میں یہ جتنے بھی اسکالرز ہیں جو ان کے ساتھ دوسرے بیک گراؤنڈ میں اسکالر بیٹھے تھے, میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اسلام کا ایک کانسیپٹ ہے الولاء والبراء, اس کے بارے میں اگر یہ مجھے بتا دیں, کیونکہ انہوں نے 8 سال مدرسے میں پڑھا, کیونکہ اس چیز کے بارے میں ایک نارمل مسلمان سے تو پوچھ ہی نہیں سکتا ہوں کیونکہ اس کو تو امب کا پتہ نہیں ہوگا, لیکن انہوں نے تو پڑھا. تو الولاء والبراء کا جو کانسیپٹ ہے وہ اگر مجھے بتا سکیں تو.